Hello everyone. Good morning. Good morning to all of you. First things we discuss about last chapters of the chemistry. The chapter is the structure of atom. The structure of the atom. I hope everyone know about the chapter thirds. Everyone learn about the Dalton's theory, but we have learned Dalton theory in the chapter third, which suggests that the every atom is consists of small particles that is called atom, but atom is a undivided. According to the Dalton's theory, atom is a undivided, but the discovery of the two fundamental particles of the electron and protons inside the atoms, which are laid to the failure of the Dalton's atomic theory. ओके मतलब जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर था, जैसे उन्होंने डाल्टन से जो अपनी बात ही बताया था कि एटम क्या है, अनडिवाइडेड है, लेकिन जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन्स विच आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स which are the take place in the atoms, then the Dalton's theory which said that atom is undivided वो क्या हुआ, फ्लॉप हो गया, फेल हो गया. ठीक है. एंड everyone have a question in brain, what the distributions of this fundamental particles within the atoms, and this arrangement of electron proton within the atoms are explained by the atomic structure model. So what is the model? Model is the representations where the electron proton are distributes in the atoms, which are represented by a representations. That's the model. Model is a representations. It is a representation of distributions of electron, proton, neutron in the atoms. Okay. Next, the first model which are given by the J.J. Thomson. J.J. Thomson was the first one to propose a model of the structure of atom. This is known as Thomson model. So we are discuss about a Thomson model of atom. What is the Thomson of the models of the atoms? According to Thomson, atom is look like a sphere. Atom is look like a sphere. The whole part of the sphere is act as it is look like as a positive part. We know that what is the positive part? Yeah, what is the positive nature? That is a proton. And the negative parts are embedded in it, and the negative parts are embedded in its in this sphere, and this is the negative part. This is a negative part. You know what is the negative parts? Which mean it is a electron. It act as a electron. Okay. This model is much like as a watermelon. We know that when we take the watermelons and when cut the watermelons, the red part of the watermelons, it look like as a positive part, and the seed which are embedded in it is like as a negative part. Okay, this is the model, and this model is also known as plum pudding model. This is also known as a plum pudding model. But what is the demerits for this model? But according to the J.J. Thomson, this model is a neutralized. This model is a neutral in nature, electrically neutral. But after the lot of experiment on this model, everyone have concluded this model is not a इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज. इसका जो डिमेरिट था, जो इसका लिमिटेशन क्या था, या हम इसको बोलते हैं जो इसका ड्रॉबैक था, अगर हम वर्ड बात करें, जो ड्रॉबैक क्या था इनका, यही कि इन्होंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं बता पाया. एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम.
इनके अकॉर्डिंग लग रहा था कि ये क्या है, ठीक है, न्यूट्रल था, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बट जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द निगेटिव, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ए न्यूट्रल. Then after the second scientist who came and to explain about the structure of atom, what is the structure of atoms, and the scientist is known as Ernest Rutherford. Rutherford was the second scientist who explained about the atomic structure, and but इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने, एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताने से पहले उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया. एंड द एक्सपेरिमेंट नेम इज स्क्रैटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन दिस एक्सपेरिमेंट it required scattering just 1 minute. This is the scattering of alpha particles. So scattering of alpha particles, you know, for the experiment it required, इसका रिक्वायरमेंट क्या था, इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट लिया था. पहला, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया. क्यों लिया, उसका भी एक लॉजिक है, बिकॉज इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इन्होंने लिया. फिर दूसरा उन्होंने लिया एक मेटल फॉयल लिया, मेटल फॉयल, लेकिन वो मेटल फॉयल किसका था, गोल्ड का. एक गोल्ड का मेटल का फॉयल लिया जिसका थिकनेस था 10⁻⁴ सेंटीमीटर का. उन्होंने क्या, गोल्ड फॉयल लिया. वाई वी टेक द गोल्ड फॉयल, बिकॉज इट हैव हाईली मेलिएबल इन नेचर. इनकी जो मेलिबिलिटी कैरेक्टर क्या था, बहुत ज्यादा था, जिसका फॉयल बहुत पतला बन सकता है. नेक्स्ट उन्होंने क्या लिया, एक जिंक सल्फाइड का क्या लिया, रोटेटरी एक स्क्रीन लिया. वाई वी टेक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, क्यों उन्होंने जिंक सल्फाइड का स्क्रीन क्यों लिया, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इसलिए किया क्योंकि वो फ्लोरिसेंसिबल था. फ्लोरिसेंसिबल का मतलब होता है अगर इस पर अल्फा पार्टिकल्स टच करता है तो वहां पे क्या होता है, एक स्पॉट बन जाता था, जिससे ये पता चल जाता था कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आके क्या किया, ठीक है, टच किया, कोलाइड्स किया, कोलिजन हुआ इनकी, ठीक है. तो इन्होंने क्या लिया, ये 3 एक्सपेरिमेंट लिया, मतलब 3 रिक्वायरमेंट लिया, और 3 रिक्वायरमेंट को क्या किया, एक अच्छे से अरेंज किया. कैसे अरेंज किया, उन्होंने क्या किया, एक जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स का क्या लिया इन्होंने, सोर्स, और यहां रख दिया क्या, गोल्ड फॉइल्स, और ये था उनका जिंक सल्फाइड का क्या, स्क्रीन. लिशन, इन्होंने क्या किया, इस सभी को क्या किया, ये क्या था हमारा अल्फा पार्टिकल सोर्स, ये क्या था हमारा गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस क्या था 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और ये हमारा था जिंक सल्फाइड की स्क्रीन. ओके, ये हमारा था स्क्रीन. अब इन्होंने क्या देखा, जो मैंने क्या किया, कितने रिक्वायरमेंट, अब देखो उनका ऑब्जर्वेशन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दे ऑब्जर्व फॉलोइंग. उन्होंने देखा क्या, मेरे वर्ड पे भी जाइएगा कि मैंने क्या बोल रहा हूं, ठीक है. उन्होंने देखा क्या, जब व्हेन द बम्बार्टमेंट, ठीक है, बम्बार्टमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉइल्स, ठीक है, ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंडीशंस. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने देखा क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पेनिट्रेट द गोल्ड फॉइल एंड गो टू द स्ट्रेट लाइंस. उन्होंने देखा क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा particles passed gold foil in straight
straight line without the deflection, without the deflection in any angle. अब उनका क्वेश्चन आया क्यों ऐसा क्यों हुआ। अब मैं उसको बताऊंगा इसका कंक्लूजन क्या हुआ था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट वेट करता हूं। उन्होंने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा उन्होंने देखा क्या, उन्होंने सेकेंड टाइम जब देखा, उन्होंने देखा कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, some alpha particles are penetrate the gold foil and deflected in some angle, penetrate the gold foil and deflected in some angle, ठीक है। इन्होंने, लेकिन ये कितने लोग थे, तो इन्होंने कहा क्या, few alpha part, sorry, some of alpha particles, some of alpha particles deflected in some angle. Why? अब इसका रीजन क्या था, इसका कंक्लूजन क्या था, क्यों ऐसा हुआ कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन सम एंगल्स। तो ये क्वेश्चन बना। फिर उन्होंने देखा क्या, few of the alpha particles without the penetrating, without the touching the gold foil and come back its own way। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या किए, बिना टच किए, बिना, ठीक है, गोल्ड फॉयल को टच किए, वो क्या किए, वापस अपने स्थान पे, मतलब उन्होंने देखा क्या, लेकिन वो कितने लोग थे, few of the alpha particles without touch the gold foil come back its own way, या हम इसको कह सकते हैं large deflection are the take place, large deflections are take place, maybe 180 डिग्री, ठीक है, या ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब उन्होंने देखा क्या, 3 ऑब्जर्वेशन थे, ऐसा क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पेनिट्रेट द गोल्ड फॉयल एंड गोल्ड वेंट टू द स्ट्रेट लाइंस विदाउट द एनी डिफ्लेक्शन। व्हाई? तो कहता है व्हाई, बिकॉज एटम हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर लग रहा है कोई लार्ज एम्प्टी स्पेस था जिसके कारण वो किसी से टच नहीं होता है और गो टू द स्ट्रेट लाइन, और वो क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन चला जाता है। अब कहता है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन सम एंगल्स। अब बिकॉज ड्यू टू द रिपल्सन, बिकॉज द अल्फा पार्टिकल इज a positive in nature, that's why due to the repulsions, it's mean according to this observations, it concluded that a very concentrated positive parts are the take place the center of atom। उन्होंने उस सेंटर ऑफ एटम को उसने नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। उनका कहने का मतलब था अ concentrated positive part present इसको सब कॉल कर दो, क्या कहता है, concentrated positive parts present the center of atom called, और उन्होंने उसका नाम दे दिया था क्या, न्यूक्लियस। बिकॉज इट हैव ए प्रोटॉन, न्यूक्लियस हैव द प्रोटॉन, दैट्स वाई इनके पास क्या था, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन पाया जाता है. उन्होंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास आर द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव इन नेचर. Alpha particle is also positive. So they both are the take place the repulsive force. That's why it deflected in some angle. ठीक है, some angle. Why? Due to the a very concentrated positive parts present the center of atom called nucleus. Who is the discovery of the nucleus? Rutherford. Rutherford are discovered the discovery of the nucleus. Nucleus are discovered by the Rutherfords during the experiment time. Okay, and the next third हमारा points क्या था? Some of the alpha particles, few of the alpha particles. उन्होंने क्या क्या तीसरा वाला जो ऑब्जर्वेशन, उनका तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था जो हमसे डिलीट हो गया अभी? उन्होंने कहा क्या? few of the alpha particles deflected large angle या come back its own way. रीजन क्या था, क्यों ऐसा हुआ? इसे हम कहेंगे क्या? कंक्लूजन इनका क्या निकला? इनका कंक्लूजन ये निकला क्या? द न्यूक्लियस इज रिजिड इन नेचर. न्यूक्लियस इतना रिजिड था, इतना कठोर था, इतना रिजिड था कि उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया अल्फा पार्टिकल्स. दैट्स व्हाई देयर आर लार्ज डिफ्लेक्शंस, देयर आर लार्ज रिपल्सन आर द टेक प्लेस एंड द अल्फा पार्टिकल्स आर केम बैक इट्स ओन वे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ this experiment, he concluded and explained about the structure of atom. Explain about the structure of atom. The structure of atoms. What is the structure of atoms? According to the Rutherfords, according to the Rutherford model of atom, the structure of atoms, every atom is a consist of a very concentrated positive parts, that's called nucleus, which are the present in the center of the atoms, and the negative parts which is a negative part mean electron, which are revolving around the nucleus. This is the model of the Rutherford. ठीक है, after the experiment he concluded that what is the structure what is the model of atoms. According to the Rutherford's model, every atom is consists of a concentrated positive part that is called nucleus, where the mass are the present, where the magnitude of the mass are the present. It's mean proton plus neutron are the take place in the nucleus, and the negative parts that's called electron, which are revolve around the nucleus. Revolving mean अपने डायरेक्शन मतलब करने वाला, अपने एंगल में भी क्या करना है? रिवॉल्व. और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या करना? रिवॉल्व. दिस मॉडल इज मच लाइक इज ए सोलर सिस्टम, लाइक दैट as the planets are revolving around the nucleus, around the sun, at the same situations as the electron are revolving as the around the nucleus. That's why Rutherford's model is also known as solar system model. हम इसे सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं, या हम इसको न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं. तो ये था हमारा रदरफोर्ड्स का मॉडल. अब इसका लिमिटेशन क्या था? इसका लिमिटेशन यही था, ठीक है. और इसका लिमिटेशन क्या था? इसका ड्रॉबैक क्या था? द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स इज दैट इन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, न्यूक्लियस आर द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. You know, when the electron are revolved around the nucleus, listen, when the electron, just 1 minute,
when the electrons are revolved around the nucleus, you know, every times the electron direction are changed. It means the acceleration of the take place. And if any charged particles have acceleration, it's lost energy. It lost energy in the form of radiation. In the form of radiation. अपनी एनर्जी को क्या करता है वो लॉस करता है. किस फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में. क्या होता है अपनी एनर्जी को क्या करता है वो लॉस करता है. और जब एनर्जी को लॉस करता है अल्टीमेटली, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड वन टाइम्स द इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द एटम इज डिस्ट्रॉयड. और एटम क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया. तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी एटम इज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड. दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल. रदरफोर्ड का मॉडल का बस यही मॉडल का मतलब डिमेरिट्स था, इसका ड्रॉबैक था. उन्होंने बोला न्यूक्लियस जो सेंटर में पाया था उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है. और रिवॉल्व करता है तो क्योंकि रिवॉल्विंग हो रहा है तो उनके डायरेक्शन टाइम टू टाइम हर डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन क्या होता है? हर वक्त क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जिसके कारण इनके बीच में क्या हो रहा है? एसिलरेशन. और जब कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल में एसिलरेशन होता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है? लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. इस चीज को जो बताता है इसी को कहता है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ही ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस या एनी अदर चार्ज पार्टिकल्स, then the energy loss in the form of radiations. This is the drawback of the Rutherford model. In the next video, we are discuss about the Niels Bohr model. पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो फिर से आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.